Hello students. Now the topic that you have to learn, that is increasing soil fertility by some bacteria and blue-green algae. So some useful microorganisms that helps to fix nitrogen from atmosphere. That are some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. So you know that in atmosphere 78% nitrogen is there, right? But that is in atmosphere, not in soil. But when that nitrogen is present inside the soil, right, that nitrogen plays an important role in the healthy growth of plants. Okay, because nitrogen is nothing but it is important a part, right, to make what we can say that protein. Okay, and you know the importance of protein, right? For healthy growth of plant, protein plays an important role. Okay, that nitrogen plays an important role, right? So from where this plant will get nitrogen, right? From atmosphere. But directly it will not, that nitrogen will not dissolve inside the soil. For that, this bacteria and blue green algae plays an important role. So they fix nitrogen, atmospheric nitrogen, in the soil, and in that way increases the soil fertility. Okay, because fertility means what we can say, that fertilization process, right, that increases. And when it increases, right, the growth of plants, what we can say, that also increases. These microbes are commonly called biological nitrogen fixers, right? So biological means these are living, na, therefore biological. नाइट्रोजन एंड फिक्सर्स, वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. कौन? बायोलॉजिकल, ये लिविंग थिंग है, राइट? सो लिविंग थिंग्स नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसीलिए इनका नाम है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन fixers. Okay, so few examples were given in this picture. You see, these are nitrogen fixing blue green algae. और blue green algae नहीं तो उसे और भी एक नाम दिया गया है, साइनोबैक्टीरिया. CYANO, साइनोबैक्टीरिया. ओके, साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हो या फिर ब्लू ग्रीन algae भी कह सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस बैक्टीरिया एंड blue green algae, one activity that you can perform at your home: take 2 pots and fill each pot half with soil. Right, 2 pots you have to take, and in that you have to fill soil. Half the pot you have to fill soil. Mark them A and B. Put plant waste in pot A, and things like polythene bags, empty glass bottles and broken plastic toys in pot B. Means organic waste, मतलब vegetable waste कह सकते हो, fruits का waste कह सकते हो, या कोई plant का waste है, वो सब कुछ क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है. तो ऑर्गेनिक वेस्ट आपको कहाँ रखना है? पॉट ए में रखना है. और पॉलीथीन बैग है, ग्लास बॉटल्स है, ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ है, वो कहाँ रखना है? वो पॉट बी में रखना है. ओके, एंड कीप एंड कवर दिस विथ सॉइल. दोनों को फिर सॉइल से कवर ढक देना है. ऑब्जर्व दैम आफ्टर 3-4 वीक्स. राइट, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट्स ऑफ द 2 पॉट्स? इफ़ सो, व्हाट इज़ द डिफरेंस? अब 2-3 वीक के बाद डिफरेंस देखना है, क्या चेंज हुआ. Okay, what will be your observation? Observation will like this: you will find that plant waste in pot A has been decomposed. ओके, डीकम्पोज मतलब गल गया. जो पॉट ए में आपने वेजिटेबल वेस्ट, मतलब जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट रखा था, राइट, प्लांट वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, राइट, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से वेस्ट मिलता है ना, वो ऑर्गेनिक वेस्ट ही होता है. तो वो सारा जो है वो पॉट ए में वो डीकम्पोज हो गया होगा. डीकम्पोज मतलब वो सॉइल के साथ मिक्स हो गया होगा, राइट और रॉन्ग, या मिक्स होने को आया होगा, राइट, और थोड़े टाइम में वो सॉइल के साथ मिक्स भी हो जाएगा, राइट. But how could this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. मतलब ये किसने किया? ये किया microorganisms, मतलब bacteria and this blue green algae, what we can say that converted this into, what we can say that they are converted them into what we can say that a useful component in soil, manure बना दिया. This nutrients released
The nutrients released in the process could be used by plant again, right? तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज कर दिया, राइट? मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया। तो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर दिया तो फिर जो दूसरे प्लांट्स जो है आप उसी सॉइल से ग्रो करना चाहोगे तो दूसरे प्लांट्स जिसके सीड्स आप डालोगे विल यूज़ दिस न्यूट्रिएंट्स, विल यूज़ दिस सिंपल सब्सटेंसेस, राइट और रॉन्ग? पहले क्या था? पहले डाला था आपने प्लांट वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट डाला था, राइट? तो वो डीकम्पोज हो गया, वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। सिंपल मतलब क्या कि भाई अगर आप दूसरे प्लांट्स को अगर आप ग्रो करना चाहोगे ना वो सॉइल से, तो वो सॉइल से नए प्लांट्स जो है वो सिंपल सब्सटेंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो सिंपल सब्सटेंस से फिर वो नए प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ होगी। ओके, The nutrients released in this process could be used by the plants again. Did you notice that in pot B, the polythene bags and empty glasses, bottles and broken toy parts did not undergo any such change? मतलब pot B में कोई change नहीं आया होगा. The microbes could not act on them and convert them into manure. मतलब माइक्रो ये सारी चीज़ों पे अटैक नहीं कर सकते, मतलब ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स पे, राइट, वॉट वी कैन से दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकते, उन्हें डीकम्पोज नहीं कर सकते। अगर वो डीकम्पोज नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होंगे, और अगर वो सॉइल के साथ मिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा? वो सॉइल में वैसे ही रहेंगे, इट लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन, राइट और रॉन्ग? बट the things that are living, or what we can say that the things what we can say that ऑर्गेनिक वेस्ट, वो तो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती है ना। अगर सपोज़ वही सरफेस पर रहती, वो सॉइल में रहती तो क्या होता? सब जगह पे क्या होता? सॉइल पॉल्यूशन होता है। सॉइल पॉल्यूशन से हम वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन अगर कुछ वेस्ट को अगर आप जला देते तो क्या होता? लीड्स टू एयर पॉल्यूशन। तो बहुत टाइप के पॉल्यूशन हो सकते थे, लेकिन ये जो इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो एक तो ब्लू ग्रीन आल्गे एंड नाइट्रोजन बैक्टीरिया, राइट? तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है सॉइल में, तो वो भी एक तरह से एनवायरनमेंट को मतलब सॉइल को हेल्प करते हैं, और दूसरी तरह से ऑर्गेनिक वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं। इस तरह से वो एनवायरनमेंट को क्लीन भी करते हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट क्लीनिंग द एनवायरनमेंट बाय सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, थैंक यू।